Hello everyone. Welcome to the channel. As you all know that net exam date is approaching and we don't have the admit cards by now, but still we know that the tentative or the expected dates are from 13th of June, right? We don't have the exact dates, but we know that from 13 June the exams are starting. So this is basically a revision series from the topics that you all have mentioned. ठीक है, I have taken those topics जो आप लोगों ने mention किए, जो आप लोगों ने बताए हैं. In today's video, I'll be covering combinational circuit questions from digital logic. Many of you are aware of this topic, and I have discussed many questions of this particular topic as well. If you will see the previous videos of mine on YouTube only, you will be able to notice that there are different videos made on combinational circuit specially, right? That is your multiplexer हो गया आपका, ठीक है, adder हो गया, half adder, full adder. Questions भी हमने बहुत डिस्कस किए हैं of this particular topic, but still today I have brought some another type of concepts that will help you to understand the questions and that will help you to do well in your exam if this topic comes. Okay. So as you all know, this is the telegram group, old telegram group t.me/netregimento. सेम ग्रुप है, वही ग्रुप है, बस थोड़ा सा लिंक चेंज हो गया है. ठीक है. So the group is this is the link t.me/netregimento. So you can join this link and you can get this PDF. I'll be sharing this PDF after this video. ठीक है. So please watch this video and then you can download the PDF from the Telegram channel. If you have any doubt related to any course that you have bought, or if you want to buy any particular course, you can write us at admin@gatelectures.com, or you can also call us on 9821876104 or 9821876102. These are the, you can WhatsApp us as well. Okay. And this is the Android app. Right now we are just dealing with the Android, so this is the Android app for now. So you can download this Android app from Google Play Store. ठीक है. एंड्रॉइड में आप इसको डाउनलोड कर सकते हो इस ऐप को, एंड फ्रॉम देयर यू कैन एक्सेस योर कंटेंट्स. ठीक है. जो भी कंटेंट्स है वेबसाइट के, वो आप सब एंड्रॉइड से डाउनलोड करके इसको आप एक्सेस कर सकते हो. और राइट नाउ वी आर नॉट अवेलेबल फॉर iOS, बट वेरी सून वील बी. सो मीनवाइल iOS वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो अपना लैपटॉप पे ही या वेबसाइट के थ्रू ही विजिट कर सकते हैं वेबसाइट को. ठीक है. एंड्रॉइड यूजर्स कैन डेफिनेटली इंस्टॉल दिस एंड कैन गो थ्रू ऑल द कोर्सेज अवेलेबल टू योर वेबसाइट. भी आपको पता है www. ये वेबसाइट का URL है, आप इसको जाके विजिट कर सकते हैं. ओके. लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस. ओके. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट. A multiplexer can be used to convert serial data to parallel form. A multiplexer can realize a Boolean function without using any logic gate. A demultiplexer can be used to convert parallel data to serial form. A demultiplexer can realize a Boolean function without using any logic gate. So, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? मल्टीप्लेक्सर सबने पढ़ा हुआ, राइट? मल्टीप्लेक्सर इस टॉपिक है दैट वी ऑल नो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन कॉम्बिनेशनल सर्किट, और हमेशा हमने पढ़ा ही है, राइट? मैंने भी बहुत बार मल्टीप्लेक्सर का कंसेप्ट डिस्कस किया, जिसको हम बोलते हैं मक्स. तो मक्स का क्या, मक्स की क्या, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मक्स? मक्स प्रॉपर्टी सेज दैट इट हैज 2 raised to power n क्रॉस 1. मतलब व्हाट डज इट सेज? 2 raised to power n is basically what? 2 raised to power n is your input, correct, and 1 output. In case of mux, we always have 2 raised to power n inputs and 1 output. So this is this type of thing. Correct. Now you all know that what is n? N is your number of select lines. Correct. So if this is my mux, suppose if this is the mux, let's say this is your 4 cross 1 mux. ठीक है. What is 4 cross 1 now? How can I write 4 cross 1? So if you all see that 4 can be written as 2 raised to power 2. So what is the value of 2? Value of 2 becomes value of n becomes 2. This means that there are n select lines, right? So this will be your select line. Let's say this is S1 and let's say this is your S0. So there will be n select lines, matlab 2 select lines, and then there will be 2 inputs. Let's say A and B. So A and B are your 2 inputs, and I have 1 output, let's say F.
So this is the basic working of mux, multiplex, right? 4 cross 1 mux means we have 2 raised to power n. We have these many inputs, total inputs, where n is your number of select lines. ठीक है, 2 raised to power n inputs मतलब 4 inputs हैं, and 2 raised to power n में n जो है आपका वो आपकी क्या है, number of select lines. This is the basic of multiplexer. And cross 1 means that we have these many inputs and this output, मतलब single output in case of mux. Now what is this saying? It is saying multiplexer can be used to convert serial data to parallel form. Now think like this. Serial data is of this type and parallelly it is of this type, right? This is what is serial to parallel. This is your serial data, right? It is coming in one form and then the data became parallel, मतलब ऐसा हो गया, right? So as we all know that in case of mux, the mux is that we have parallel data and then that data is converted into a single output. Multiple inputs are converted into single output. So it is basically parallel to serial. It is not serial to parallel because you can say demux is serial to parallel because demux का case क्या होता है? If this is your mux, if I write, what is the case of demux? Demux is 1 into n, like this. This is your demux. So we can say that serial to parallel is case of demux and parallel to serial is case of mux. So what is the point saying over here? A multiplexer can be used to convert serial to parallel data. Serial data to parallel form? No. ठीक है. A multiplexer can realize a Boolean function without using any logic gate. Correct. A multiplexer basically it can realize any Boolean function without the use of any logic gate. ठीक है. A demultiplexer can be used to convert parallel data to serial form. Again wrong. Why? Because just now I told you that demux is basically 1 cross 2 to the power n. This is the case of demux. So 1 cross 2 to the power n का मतलब है कि serial data you are converting into parallel form. ठीक है. A demultiplexer can realize a Boolean function without using any logic gate. We cannot say it can be, it may not be. So the correct answer to this question is option number B. That is, a multiplexer can realize a Boolean function without using any logic gate. Okay. Next question. If A XOR B is equal to C, which of the following is true? Now what is the, I hope you all know that this symbol is for your XOR, है ना? XOR का होता है. Now what is the property of XOR? If I have two inputs A, B and if I am doing A XOR B. So what is the truth table of XOR if I say? 0, 0 will give you 0, 0, 1 will give you 1, 1, 0 will give you 1 and 1, 1 will give you 0. So XOR says that if both the inputs are same, ठीक है, if both the inputs are same, then our result is 0. चाहे आपका ये वाला केस हो, if you see with this one 0 0 0 or you can see this one 1 1 0. So when the inputs are same, the result is 0, and when the inputs are different, the result is 1. Okay, so what they have given us, they have given us that A XOR B is equal to C. This is what they have given us. Now we have to tell which of the following is true. Let's take one statement at a time. Option 1 is A XOR C. So now I have to prove that it's equal to B. So what I can do, instead of this C, I can write it as A XOR B. Yes, if I see from equation 1, I can write it like this. I'm writing from 1 so that it is clear to you all. From equation 1, I can replace this C with A XOR B. Okay. Now, if you see, these two inputs are same, A XOR A. What is A XOR A? Both are same inputs. When inputs are same, the result is 0. So 0 XOR B. Now, B, if B is equal to 0, what is 0 XOR 0? 0 XOR 0 will be 0. But what if B is equal to 1? 0 XOR 1 will be 1. So now the output depends on B. Agar B 0 hai, to output is 0. If B is 1, then output is 1. So over here, the output will be B. So this is what we have proved, that A XOR C is equal to B. And how we have proven this point? We have proven this point by using the equation given to us, that is A XOR B is equal to C. Let's check for option number 2, that is B XOR C. We will apply the same thing. We will apply this over here, B XOR
A XOR B. Now you must be thinking that अब क्या करेंगे? So I hope you all know that XOR is associative and commutative both. ठीक है, XOR जो है वो आपका कम्यूटेटिव भी है एंड XOR जो है आपका इट इज एसोसिएटिव एज वेल. ठीक है, सो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन रिप्लेस इट एज B XOR B XOR A. Now again this becomes what? This becomes 0. 0 XOR A. Now this again will depend on A itself. Why? Because A can be 0 or A can be 1. So if 0 XOR 0 will give you 0, 0 XOR 1 will give you 1. That is A in both the case. So the output now depends on A. So now we have proven this second point as well. Okay. Now let's prove the third one, that is A XOR B XOR C. Now see, for doing these questions what I can suggest is, since this is recorded video, what you can do is कि आप लोग when you see the question just pause the video and try to solve the question yourself and then check whether your answer was correct or not. ठीक है. Now what I can do, I can replace this from this C XOR C, and we know when both the inputs are same the result turns out to be 0. So all of the above is your answer. That is, all the statements are correct. Okay, simple है, कुछ नहीं है, बस with the help of this XOR आपको XOR की truth table पता होना चाहिए. Simple. Just by knowing the truth table of XOR you can do the full question. Okay. The figure above or the figure this one implements the Boolean functions. You have to tell which Boolean function it's implement. Okay, it's an easy one. What is this? Is basically AND. I hope you all know. So this will be X. This will be Z complement because not आ गया. ठीक है. This will be Z itself because यहाँ पे क्या है, Z पहले ले लिया हमने, यहाँ पे complement जा रहा है, यहाँ पे simple Z. Now what about this one? This is Y. This one is X and this one is Y. So what it will be? What will be the value of F now? F will be equal to X Z complement plus YZ plus XY. Now you can see that the options given to us are in the form of K-map. K-map होते हैं ना, जो K-map के सेल नंबर्स होते हैं उसके फॉर्म में ऑप्शंस दिए हुए हैं 2 3 5 7 3 4 6 7. So that is only possible when I have all the 3 inputs with me, right? So what I'll do, I hope you all know this property. A plus A bar will give you 1, and if you multiply something with 1 the result will be the number itself, because अगर value of A is 0 तो यहाँ result भी आपका 0 आ जाएगा. I hope you know this. These are the very important properties that you should know when you are dealing with the questions of Boolean algebra or you're dealing with the questions of this logic gates. ये बहुत important property है, ठीक है. So what you will do over here, we will add y plus y complement to this term, that is to first term, plus यहाँ पे which term is missing, यहाँ पे x की term missing है. So what I'll do, x plus x bar. Now why I'm doing this, it will help me to convert these 2 variables into 3 variables, and since I am adding the negative and non-negative term, they will cancel out each other, so they will not affect my original equation. ठीक है. You must be thinking कि हम क्यों ऐड कर रहे हैं y plus y bar. We are adding because हमारा जो रिजल्ट है वो हमें 3 मतलब टर्म्स में दिया हुआ है, 2 मिन टर्म्स के में दिया हुआ है, राइट, विद रिस्पेक्ट टू मिन टर्म्स जो मैक्स जो आपके के मैप में होते हैं. नाउ मिन टर्म्स आर बेसिकली 3 वेरिएबल्स. अगर हम 3 वेरिएबल मैप की बात करें, so for that case we have to convert these 2 variables into 3 variables. अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म में x z कॉम्प्लीमेंट में y वाली टर्म मिसिंग है, so we are adding negative and non-negative of y so that it rules out and it does not affect my original equation. Plus यहाँ पे क्या मिसिंग है, z, so it will be x y z plus z complement. So it will be, if I open it, it will be x y z complement plus x y complement z complement plus x y z plus x complement y z plus x y z plus x y z complement. So what is this term?
ये कौन सी टर्म हुई आपकी? दिस इज 110, so this is 6, then this is 100, that is 4, this is 111, so this is 7. I hope you all know ये कैसे करें. x को हम वैल्यू देते हैं 1 और x कॉम्प्लीमेंट को वैल्यू देते हैं 0, करेक्ट. So 011, that is 3, again 111, that is 7, and this is 110, that is 6. So 6 फाइनल आंसर में क्या आ जाएगा? 6 4 7 3 और 3 4 6 7, दैट इज योर ऑप्शन नंबर 2. 3 4 6 7. सिंपल से क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, बस आपको जो फिगर दी हुई है, इमेज दी हुई है, जो भी फिगर है उससे आपको बुलियन फंक्शन फाइंड करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सर्किट इज और आर ट्रू. सर्किट्स के बारे में बात हो रही है, कॉम्बिनेशन सर्किट्स आपके. सो कॉम्बिनेशन सर्किट्स मे हैव फीडबैक बट सीक्वेंशियल सर्किट्स डू नॉट. कॉम्बिनेशन सर्किट्स हैव मेमोरीलेस प्रॉपर्टी बट सीक्वेंशियल सर्किट्स डू नॉट. Both combinational and sequential circuits must be controlled by an external clock. सबसे पहला स्टेटमेंट है कॉम्बिनेशनल सर्किट्स में हैव फीडबैक बट सीक्वेंशियल सर्किट्स डू नॉट. यहाँ पे जो ये स्टेटमेंट दिया है, यहीं पे आपका ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा. क्यों? बिकॉज सीक्वेंशियल सर्किट्स हैव मेमोरी, राइट. अगर हम देखें, राइट, sequential circuits are digital circuits that store and use the previous state information to determine their next state. मतलब they require memory. यहाँ पे memory की requirement है, because why? They are storing and using the previous state information. So sequential circuits do not have memory. This is wrong. So one option आपका गलत हो गया. Combination circuits have a memoryless property but sequential circuits do not. Yes, memoryless property combination circuits की है, but sequential circuits use memory. Both combination and sequential circuits must be controlled by external clock. No, combination circuits do not use clock. Clock का concept combination circuits में नहीं है, ठीक है. sequential circuits में we are using external clock, but combination circuits में कभी भी हम clock का use नहीं करते. So the correct statement is only statement number 2, that is combination circuits have memoryless property but sequential circuits do not. Sequential circuits do have memory, ठीक है. Okay, the black box in the figure consists of minimum complexity circuit that uses only and or and not gates. ठीक है, 3 gates यूज हो रहे हैं, and or and not. क्या बोल रहे हैं वो? The function f x, y, z is equal to 1. This is important. क्या बोल रहे हैं वो? फंक्शन f जो है वो कब है 1? It is 1 wherever x and y are different. मतलब whenever the value of x and y are different, that is x is 0, y is 1, x is 1, y is 0. In that case, the function is giving us value 1 and 0 otherwise. Otherwise वो क्या दे रहा है? Otherwise it is giving us a value 0. मतलब when both x and y are having same values, it is giving us 0. The function output is 0. अब इसमें एक और कंडीशन ऐड कर दी इन्होंने. In addition, the 3 inputs x, y and z are never all the same value. मतलब जो 2 केसेस होते हैं जब x, y, z all 3 have same value, that case does not exist. तो पहले what we have to do? First of all, what will be the step? What will be our approach? Firstly, what we will do? We will write x, y, z. And we will write the possible values of x, y, z. 0, 0, 0. Since we have 3 variables, so how many possible outcomes we can have? 2 raised to power 3, that is 8. So that is 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1. So now we have 0 to 7 cases, ठीक है. First of all, what we will see over here, क्या बोल रहे हैं?
द थ्री इनपुट्स एक्स वाई एंड जेड आर नेवर ऑल सेम, तो सेम वो कभी भी नहीं होना चाहिए, तो ये वाला केस हमने मिस कर दिया, मतलब लीव कर दिया, एंड ये वाला केस लीव कर दिया. नाउ वी आर लेफ्ट विथ ओनली दीज केसेस, दैट इज फ्रॉम 1 to 6. समझ में आया कि हमने क्यों वी हैव डिस्कार्डेड दीज टू वैल्यूज 000 111, बिकॉज दे आर क्लियरली सेइंग दैट इन एडिशन द थ्री इनपुट्स एक्स वाई जेड आर नेवर ऑल द सेम. तो ये जो ब्लैक बॉक्स है, बेसिकली आपके जो ब्लैक बॉक्स की फिगर है, ये इसकी प्रॉपर्टीज है. क्या प्रॉपर्टीज है कि 1 कब आ रहा है, 1 आ रहा है व्हेन एक्स एंड वाई आर डिफरेंट. फाइनल जो वैल्यू है वो 1 कब आ रही है, फाइनल वैल्यू इज 1 व्हेन एक्स एंड वाई आर डिफरेंट, otherwise it is 0. And in addition, when x, y, z all three are having the same values, it is not giving any output. मतलब it is not taking this input. जब x, y, z की तीनों वैल्यूज क्या है, सेम है, तो वो तीनों वैल्यूज कब सेम होंगी, जब या तो x, y, z तीनों क्या हो, 0 हो, या फिर तीनों क्या हो, 1. So in that case we are not accepting this input. Now we will see the rest of the question. x and y are different. यहाँ पे x and y क्या है, सेम है, तो क्या आउटपुट आ गया यहाँ पे, 0. यहाँ पे x and y क्या है, अलग है, so the output turns out to be 1. Here the x and y are different, so output turns out to be 1. Different, so यहाँ पे भी 1, और यहाँ पे भी different, so यहाँ पे भी output आ गया 1. अब यहाँ पे क्या है, same, so यहाँ output आ गया आपका 0. So now we have 4 conditions जहाँ पे output क्या है, 1. What are those 4 conditions? We will write it over here. 4 conditions क्या है हमारी, 0 1 0. so सबसे पहला है 0 1 0 प्लस 0 1 1 प्लस 1 0 0 प्लस 1 0 1. ठीक है, सो व्हाट इज दिस, x कॉम्प्लीमेंट y z कॉम्प्लीमेंट प्लस x कॉम्प्लीमेंट y z प्लस x y कॉम्प्लीमेंट z कॉम्प्लीमेंट प्लस x y कॉम्प्लीमेंट z. अब यहां से कुछ कॉमन, कैन वी टेक एनीथिंग कॉमन फ्रॉम हियर, लेट्स सी. सो अब यहां से अगर आप देखो, इफ यू सी फ्रॉम हेयर, फ्रॉम दीज टू टर्म्स, कुछ कॉमन लिया जा सकता है फ्रॉम दीज टू टर्म्स. यस, क्या कॉमन ले सकते हैं फ्रॉम दीज टू टर्म्स, वी कैन टेक, सॉरी, what we can do, we can take common x complement y. so यहाँ पे क्या बचा, z complement plus z. so यहाँ से हमने ये कॉमन लिया. from these two terms can we take anything common, from these two terms कुछ कॉमन लिया जा सकता है. yes, क्या है, क्या ले, we can take common x y bar and then we will have z bar plus z. so this will be 1. so क्या रिजल्ट आ गया हमारा, x bar y plus x y bar. ये हमारा फाइनल आउटपुट आ जाएगा. दिस विल बी दी आंसर. तो क्या आंसर हो गया, x bar y x y bar, दैट इज ऑप्शन नंबर 1. कुछ नहीं था, बस यू हैव टू अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, व्हाट द क्वेश्चन इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू. बस अगर वो क्वेश्चन आपको कॉम्बिनेशनल सर्किट का क्वेश्चन ही यही होते हैं, you just have to understand the language of the question. Once the language is understandable by you, you will be able to easily solve the question. You just have to understand the language. Okay. Next question, very easy. In a base b number system, 54 divided by 4 base b is equal to 13 base b. You have to tell what is the value of b. 2, 10, 8 और 6. क्या करेंगे, ये हमारा ये क्वेश्चन है. 54 by 4 base b is equal to 13 base b. So what we will do, we will convert it in the decimal form. कैसे करते हैं decimal form में, I hope you all know. ये आपका 0 होता है पावर, ये आपकी 1 होती है, राइट. दिस इज 0th पावर, दिस इज 0 पावर, दिस इज 1. So what will be 5 into b to the power 1 plus 4 into b to the power 0 upon 4 into b to the power 0 equal to 1 into b to the power 1 plus 3 into b to the power 0. ठीक है, this will be 5b plus 4 upon 4 equal to b plus 3. What I can do, I can take this 4 over here. So क्या हो जाएगा,
it will be 5b plus 4 equal to 4 multiply by b plus 3. So ये क्या हो गया आपका 5b plus 4 equal to 4b plus 12. तो ये आपका हो गया 5b minus 4b equal to 12 minus 4. That is b is equal to 8. तो हमारा b की क्या वैल्यू क्या आ गई? The value or the base or the value of base b is 8. सिंपल है, कुछ भी नहीं है. सिंपली आपको बस you have to convert it into decimal and then you have to find the value of b. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट गिव मी अ सेकेंड. बहुत इजी क्वेश्चन है. डिकोडर दिया हुआ है आपको, ठीक है. आई होप यू ऑल नो कि डिकोडर क्या क्या होता है. डिकोडर होता है बेसिकली आपका n इंटू 2 to the power n. मतलब ये आपकी इनपुट लाइन्स है अगर, तो दिस विल बी योर आउटपुट लाइन्स. मतलब फॉर एग्जाम्पल सबसे कॉमन होता है 3x8 डिकोडर, ठीक है. और एनकोडर क्या होता है? एनकोडर इज द रिवर्स ऑफ इट, दैट इज 2x n मल्टीप्लाई बाय n. मतलब ये 2 to the power n आपकी इनपुट्स हो गई और n आपका आउटपुट हो गया. द कॉमन एनकोडर इज 8x3. सो ये बेसिक डिफरेंस है डिकोडर और एनकोडर, ठीक है. क्या बोल रहे हैं वो? एक कॉम्बिनेशन सर्किट है यूजिंग डिकोडर एंड और गेट्स. तो ये आपका डिकोडर है. कौन सा डिकोडर है ये आपका? 3x8, बिकॉज वी हैव 3 इनपुट्स x y z एंड वी हैव 8 आउटपुट 0 to 7. और ये आपकी और गेट्स है. इंप्लीमेंटिंग 3 बुलियन फंक्शंस f1 f2 f3. यू हैव टू टेल व्हाट इज द करेक्ट बुलियन एक्सप्रेशन फॉर दीज फंक्शंस. तो अब देखो f1 जो है वो किस किस आउटपुट से कनेक्टेड है? f1 इज कनेक्टेड टू 1, then it is connected to 4 and then it is connected to 6. So basically f1 will be equal to 1 plus 4 plus 6. That is 1 is what? 0 0 1. ठीक है. Plus 4 is what? 1 0 0. And what is 6? 1 1 0. So we have to simply substitute the value. So it will be x bar y bar z plus x y bar z bar plus x y z bar. ठीक है. अब यहां से we can take anything common. Yes, what we can do? We can take common. We can take from these two terms. We can take something. Okay, this is a dark color. Sorry. This is what it was saying. Yes, from these two terms, can we take anything common? See for yourself and tell. कॉमन ले सकते हो आप. What you can do, ये आप ऐसे रहने दो, x बार y बार z को ऐसे रहने दो प्लस from here we can take common x z bar, right? So it will be y plus y bar, that will be 0. So f1 की टर्म क्या आ गई? f1 की जो बुलियन एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा x बार y बार z प्लस x z bar. This will be the term for f1. Same for 2. अब f2 किस किस से कनेक्टेड है? f2 is connected to 2, f2 is connected to 4 and f2 is connected to 5. तो f2 का भी आपको सेम प्रोसेस करना है एंड f3 का क्या प्रोसेस है? f3 is connected to 6 and 7. ठीक है. सो ये आप लोगों का होमवर्क है. यू हैव टू डू these, you have to find f2 and f3 boolean functions expressions for f2 and f3 and you have to share in the group. टेलीग्राम ग्रुप पे सबके आंसर्स आ जाने चाहिए. f2 f3 वेरी इजी, बहुत इजी, कुछ भी नहीं है. f2 f3 को फाइंड करना है आपको कि व्हाट विल बी दी बूलियन एक्सप्रेशन फॉर f2 एंड f3.
ठीक है, कर लोगे ना, हो जाएगा आई गेस। ओके, दिस इज अ नाइस क्वेश्चन। The 8 to 3 encoder or octal to binary encoder consists of 8 inputs O7 to O0। एनकोडर है तो मैंने आपको बताया था एनकोडर में क्या प्रॉपर्टी है एनकोडर की। एनकोडर की प्रॉपर्टी है 2 क्रॉस n टू टू द पावर n क्रॉस n, मतलब 2 to the power n इनपुट्स एंड n आउटपुट्स। तो इनपुट कितने हो गए, n इज इक्वल टू 3 है यहाँ पे, ठीक है। इन दिस क्वेश्चन n इज इक्वल टू 3, सो आउटपुट्स हो गए आपके 8, सॉरी इनपुट्स हो गए आपके 8 एंड 3 आउटपुट्स B2 B1 एंड B0। Each input line corresponds to each octal digit and the 3 output generate corresponding binary code। मतलब if input line O4 is set, अगर इनपुट आपका है O4, ठीक है, जो आपका जो बेसिकली आप अब समझो एनकोडर आपका ऐसा है, वेट, जो आपका एनकोडर है वो कुछ इस टाइप का, इट इज बेसिकली 8 क्रॉस 3, ठीक है। सो वी हैव 1 2 3 4 5 6 7 8। So we have O0, O1, O2, O3, O4, O5, O6, O7। These are your inputs and we have 3 outputs, that is B2, B1 and B0, ठीक है। So what they are saying, if input line O4 is set, मतलब O4 अगर set है आपकी input line, तो आउटपुट क्या होगा B2 1, B1 0, B0। अब कैसे देखो, ये जो आपके आउटपुट्स दिए हुए हैं इट इज ऑफ दिस फॉर्म B2 B1 एंड B0। तो अगर O4 है मतलब व्हाट इज द वैल्यू 4, तो 4 हाउ विल यू रिप्रेजेंट 4 इन बाइनरी 1 0 0। वही वो आपसे बोल रहे हैं कि अगर इनपुट लाइन O4 इज सेट, O4 अगर इनपुट लाइन ऑन है, सेट का मतलब ऑन समझ लो, तो आपका आउटपुट क्या होना चाहिए, आउटपुट में क्या लाइंस ओपन होनी चाहिए 1 0, मतलब B2 की वैल्यू 1 होनी चाहिए, B1 की वैल्यू 0 होनी चाहिए और B0 की वैल्यू 0 होनी चाहिए। यहाँ पे मेंशन भी है कि B2 इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, तो ये आपकी MSB हो गई B2, ठीक है। देन दे हैव गिवन यू सर्टेन लॉजिकल एक्सप्रेशंस फॉर B2 B1 B0 और फिर वो आपसे पूछेंगे क्या ये लॉजिकल एक्सप्रेशन सही है या नहीं, ठीक है। तो अब क्या दिया हुआ है, वील सी वन बाय वन। B2 सबसे पहले वील स्टार्ट विद B2। B2 की क्या दिए हुए हैं एक्सप्रेशंस, O7 प्लस O6 प्लस O5 प्लस O4। व्हाट इज 7, 1 1 1, 6 क्या होता है 1 1 0, 4 1 0, 5 1 0 1 और 4 होता है 1 0 0। अब सबसे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट आपकी क्या रिप्रेजेंट कर रही है, क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है B2 इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। B2 आपकी क्या है MSB, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो ये जो आपका रिप्रेजेंटेशन है दिस इज बेसिकली, ये आपकी B2 है, ये आपकी B1 है, ये आपकी B0 है, करेक्ट। तो यहाँ पे B2 की वैल्यू क्या है 1, यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे क्या है 1। तो जब B2 की सारी वैल्यूज 1 है दिस मीन्स दैट B2 इज ऑन राइट नाउ, ठीक है। तो अगर इफ आई हैव टू रिप्रेजेंट B2 विद रिस्पेक्ट टू O7 टू O0, दिस इज द करेक्ट लॉजिकल एक्सप्रेशन। क्यों, बिकॉज सबकी वैल्यू क्या है, O7 में भी B2 1 है, O6 में भी B2 1 है, O5 में B2 1 है, O4 में B2 1 है। So basically we are dealing with that particular concept जहाँ पे we have to find the value of B2. These are 3 different bits, they're talking about particular bits and they have given the logical expressions for these bits, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट अगर हम देखें B1, सो व्हाट अबाउट B1, B1 में दिया हुआ है O7 अगेन, O6 O3 O2। अब यहाँ पे देखो 7 हो गया 1 1 1, 6 हो गया 1 1 0, 3 हो गया 0 1 1,
और 2 हो गया 0 1 0। अब नाउ वी डीलिंग विद B1। B1 कौन सी बिट हुई? B1 आपकी सेकंड बिट हुई, ये वाली बिट। ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है एंड ये भी 1 है। सो ये सारे आपके, ये फिलहाल आपका ये भी करेक्ट आ रहा है और ये भी करेक्ट आ रहा है। नाउ विल डील विद B0। O7 O5 O3 O2। सो O7 हो गया ऑल 1, 5 हो गया 4 2 1, 3 हो गया 0 1 1 और 2 हो गया 0 1 0। अब हमें देखना है B0। तो ये वाली B0 हुई, ये वाली B0 हुई, ये वाली B0 हुई, ये वाली B0। अब यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे ये वाली जो बिट है आपकी, ये वाली बिट है 0। सो इन दैट पर्टिकुलर केस जो आपका B0 है वो नहीं है करेक्ट। सो ओनली करेक्ट स्टेटमेंट्स आर B1 एंड B2। समझ में आया कैसे? सिंपल सी चीज उसमें हुई है। व्हाट वी हैव डन इज, सी, अगर इफ आई हैव टू सपोज दिस इज वन स्विच, ठीक है, एंड दिस स्विच इज कनेक्टेड टू these three inputs, let's say B2 B1 and B0, let's say, ठीक है। या फिर इसको ऐसे समझो, अगर हम क्वेश्चन के कंसेप्ट में समझे, दिस इज योर स्विच B2, ठीक है, इट इज कनेक्टेड टू 4, इट इज मतलब 4 कनेक्शंस आ रहे हैं इस पे, O7 O5 O4 O6, एग्जाम्पल है, ठीक है, एग्जाम्पल है। तो ऑब्वियस सी बात है, व्हेन ऑल दीज 4 विल बी ऑन, जब ये ऑन होंगे, मतलब जब इन सब की वैल्यू 1 होगी, देन ओनली माई स्विच B2 विल वर्क। यस और नो? अगर इनमें से कोई एक भी ऑफ हो जाए, कोई एक भी ऑफ हो जाए, तो यहाँ से 1 आ रही वैल्यू, ठीक है, यहाँ से 1 आ रही, यहाँ से 0 आ गई। सो दिस मीन्स दैट द वैल्यू ओवर हेयर विल बी 0, मतलब स्विच विल रिमेन ऑफ। तो वही कंसेप्ट यहाँ पे यूज हुआ है, दैट B2 इज हैविंग सॉरी B2 is having O7 O6 O5 O4, सब में B2 क्या है? 1, तो दिस इज ऑन, करेक्ट। B1 के केस में भी O7 O6 O3 O2 सब में वैल्यू 1 है, दैट इज ऑन, दैट इज करेक्ट। B0 के केस में वी हैव O7 O5 O3 O2, जहां पे O2 के केस में जो B0 है, बिट है, वो 0 है, दैट मीन्स दैट इज नॉट ऑन, वी कैन थिंक ऑफ इट एज कि वो ऑन नहीं है। तो इन दैट केस B0 विल बी रॉन्ग। So B1 and B2 are correct. Okay. Next, okay. The figure implements the Boolean function. अब यहाँ पे सिंपल सा उन्होंने फिगर दे रखी है आपको, ठीक है। दे हैव नॉट मेंशन कि ये फिगर क्या है, मल्टीप्लेक्सर है, डिकोडर है, डी मल्टीप्लेक्सर है, एनकोडर है, व्हाट इट इज, नथिंग इज मेंशन टू अस। सो इट इज नथिंग, ठीक है। कोई भी प्री डिफाइंड नोशन लेके मत चलना कि ये मल्टीप्लेक्सर है या ये डी मल्टीप्लेक्सर, कुछ भी, ठीक है। इट इज अ सिंपल फिगर विद सर्टेन कॉम्बिनेशंस ऑफ लॉजिक गेट्स एंड स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें हम कुछ इनपुट्स दे रहे हैं एंड वी आर गेटिंग वन आउटपुट, एंड यू विल नोटिस दैट वन आउटपुट इज इन फॉर्म ऑफ मिन टर्म्स। हमें मिन टर्म्स दी हुई है, सो वी हैव टू बेसिकली फाइंड आउट दी मिन टर्म्स। अब कैसे, हाउ यू विल डू इट? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी दैट दीज आर दी 3 सेलेक्ट लाइन्स, S0 S1 S2। क्या है आपकी? ये सेलेक्ट लाइन्स है, मतलब अब यहाँ पे मैं ये नहीं कह रही कि मक्स है ये, बट दीज आर सेलेक्ट लाइन बिकॉज दे आर रिटन एज S0 S1 S2, ठीक है। अब S0 इज कनेक्टेड टू C, S1 is connected to B and S2 is connected to A. अब how we will know कि C B A आपका वो है order of writing या A B C है, क्योंकि कुछ mention तो है नहीं। अगर आप question में देखो, if you see in the question you will notice it is A B C D A B C D A B C D A B C D. This simply means that the order is A, मतलब S2 पहले है, most significant bit is your S2, फिर we have S1 and then we have S0, ठीक है। दिस इज फॉर नाउ। और जो लास्ट है हमारा D, उसकी मल्टीपल वैल्यूज हैं, जो कभी 0 से कनेक्टेड है, 1 से कनेक्टेड है, वी विल सी टू इट, ठीक है। सबसे पहले व्हाट वी विल डू, सबसे पहले वी विल राइट अ टेबल फॉर दीज 3 वैल्यूज, सो इट विल बी 0 0 0
001, एक मिनट, जस्ट लेट मी चेक वन थिंग, ओके, 010, 011, वाई वी आर डूइंग दिस, बिकॉज हमें मिन टर्म्स के रिस्पेक्ट में चाहिए, 100, 101, यहां लिख रही हूं मैं, ठीक है। रिमेनिंग आपकी जो S2, S1, S0 और ये D है, ये आपका हो गया। फिर अब 1110 और 111, ठीक है। अब when the value is 0, मतलब जब इनपुट 0 है, ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। जब इनपुट 0 है, ऑब्वियसली ये क्या है आपका 000, क्या है ये आपका, अगर हमारी जो इनपुट लाइन 000 है, सिलेक्ट लाइंस 0 है, सपोज ऑल जीरोस, तो क्या हो रहा है, मतलब 0 इनपुट कौन सा ऑन है इस वक्त, 0th इनपुट ऑन है। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। अगर ये सिलेक्ट लाइंस है S2, S1, S0, तो कौन सा इनपुट ऑन है, 1। अगर ये सिलेक्ट लाइंस है तो कौन सा इनपुट ऑन है इस वक्त, 6, ठीक है। सो अगर आप देखो यहाँ पे, when all the select lines are 0, the 0th input is taken and is connected to D, ठीक है, D से कनेक्टेड है, सो आई विल राइट इट एज सिंपली D, ठीक है। अब यहां पे ये बात समझ में आ गई। 001 मतलब जब सिलेक्ट लाइन 001 मतलब कौन सा इनपुट हो गया, 1, अगेन इज कनेक्टेड टू D, तो यहां पे भी मैंने क्या लिख दिया, D। 010 ये आपका क्या हो गया, आई जस्ट राइट इट ओवर हियर, यहाँ पे इनपुट लिख देती हूँ मैं, ये आपका 0th इनपुट हो गया, ये आपका 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 4, 5, 6 एंड 7, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है कैसे। अब 010 2 किससे कनेक्टेड है, D कॉम्प्लीमेंट, तो ये आपका हो गया D कॉम्प्लीमेंट। 3 किससे कनेक्टेड है, 3 जो है वो कनेक्टेड है 1 से। 4 किससे कनेक्टेड है, 4 कनेक्टेड है 1 से। 5 इज कनेक्टेड टू D, 6 इज कनेक्टेड टू 0 एंड 7 इज कनेक्टेड टू 0, ठीक है। अब ये आपके 4 वेरिएबल मिन टर्म्स हो गए ABCD। D की वैल्यू जो है, ठीक है, जो आपका लास्ट वेरिएबल है D, दैट वैल्यू डिपेंड्स ऑन दी सेलेक्ट लाइंस इनपुट, ठीक है, कि सेलेक्ट लाइंस का क्या वैल्यू है और वो वैल्यू किस वैल्यू से कनेक्टेड है, किस इनपुट से कनेक्टेड है। अब D और D कॉम्प्लीमेंट दोनों ही है यहाँ पे, ठीक है। सो D इज बेसिकली 1 एंड D कॉम्प्लीमेंट इज 0, यही होता है नोशन बेसिकली। D हमारा 1 होता है और D कॉम्प्लीमेंट 0 होता है, तो ये क्या बन गया हमारा 0001, ये क्या बन गया 0011, ये क्या बन गया 0100, ठीक है, ये क्या बन गया 1011, ठीक है। अब यहां पे वी आर हैविंग दिस, अगर आप देखो यहां पे वी आर हैविंग दिस 1, ठीक है। नाउ अगर आपको ध्यान हो या आपने पढ़ा हो, अब जो 1 है, ठीक है, वी नो दिस प्रॉपर्टी, अगर आपने कभी ध्यान पढ़ी होगी कि A प्लस A कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1, ठीक है। मतलब 1 की जगह पे आई कैन हैव A ऑल्सो, आई कैन हैव A कॉम्प्लीमेंट ऑल्सो। अगर हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, सो 1 इज बेसिकली इक्वल टू D प्लस D कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यूज आ रही है वो होंगी 0110 दैट इज फॉर D कॉम्प्लीमेंट एंड 0111 फॉर D। सिमिलरली यहाँ पे 1000 फॉर D कॉम्प्लीमेंट एंड 1001, ये क्या हो गई, ये हो गई 1100 और ये हो गई 1110। अब ये फाइनल वैल्यूज क्या बनी आपकी, ये बना आपका 1, ये बना आपका 3, ये बना आपका 4, ये क्या वैल्यूज बनी आपकी 6
कॉमा 7, ये क्या वैल्यूज बनी, 8 कॉमा 9, ये क्या वैल्यूज बनी, 1011, ये बनी आपकी 11, ये बनी आपकी 12 और ये बनी आपकी 14। ठीक है, अब हमारा जो क्वेश्चन है उसमें 12 और 14 की वैल्यूज नहीं, क्योंकि उन्होंने कंसीडर नहीं कर रखे 12 और 14। क्यों? बिकॉज द वैल्यू ऑफ डी इज 0 इन दिस केस। मतलब ये कनेक्टेड, इनका जो आप जीरो समझ लो, अर्थिंग समझ लो बेसिकली। जीरो का मतलब यहाँ पे ये है कि दीज आर नॉट वैलिड, ये वैलिड नहीं है वैल्यूज, क्योंकि यहाँ पे डी की वैल्यू क्या हो गई है, 0। जब इनपुट 0 हो गया मतलब कि दीज वैल्यूज आर नॉट वैलिड। ठीक है, तो जो हमारा करेक्ट आंसर आएगा वो होगा ये ऑप्शन नंबर 4, 1 3 4 6 7 8 9 11। ये हमारा करेक्ट आंसर हो। अब इसमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है, आप ये समझ सकते हो कि हमने 1 को हमने कैसे ब्रेक किया। तो 1 को बेसिकली हमने ब्रेक किया है d प्लस डी कॉम्प्लीमेंट में, समझ लो। तो एक हमारा टर्म बना 0 1 1 1 हुआ ना, ये वाला 1, इस 1 को हमने ले लिया 0 1 1 0 एंड 0 1 1 1। तो ये दो टर्म्स में ब्रेक हो सकते हैं, क्योंकि 1 की जगह कुछ भी हो सकती है। d प्लस डी कॉम्प्लीमेंट is a correct explanation for 1. Expression for 1 is d plus d complement. तो यहाँ पे वो कुछ भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पे हमने दोनों मिन टर्म्स को लिया हुआ है। ठीक है, 6 को भी, 7 को भी, 8 को भी एंड 9 को भी। तो ये यहाँ पे ये एक्सप्लेनेशन है इसका। ठीक है, अगर इन केस यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस, आई सजेस्ट कि एक बार दोबारा से देख लेना क्वेश्चन को। ठीक है, एक्सप्लेनेशन को इन एंड अगेन अगर समझ में नहीं आता है देन यू कैन आस्क मी ऑन द टेलीग्राम ग्रुप। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी 3 to 8 line decoders with an enable input are needed to construct a 6 to 64 line decoder without using any other logic gate? Very easy, हमें 3 to 8 मतलब 3 क्रॉस 8 डिकोडर्स से क्या बनाना है, 6 क्रॉस 64 डिकोडर्स बनाने हैं। दे आर आस्किंग कि हाउ मेनी डिकोडर्स विल बी रिक्वायर्ड विथ 3 क्रॉस 8, मतलब 3 क्रॉस 8 के कितने डिकोडर्स जरूरी होंगे टू कन्वर्ट दिस इनटू 6 क्रॉस 64। क्या करते हैं इसके लिए, जो ये वाली टर्म्स है ना, ये वाली, इन टर्म्स को हम डिवाइड करेंगे। जब तक वी विल लास्ट में या तो हमारे पास 0 आना चाहिए या 1 आना चाहिए। ठीक है, so 64 divide by 8, that will give you 8. Again we will take this input, 8 divide by 8, that is 1. तो 1 मिल गया हमें। so now we will add this and this, so 8 plus 1 will give you 9. so answer आ गया आपका 9. so how many 3 cross 8 line decoders are required? 9 3 cross 8 line decoders are required. मल्टीप्लेक्सर में भी यही करते हैं। कब तक डिवाइड करते हैं, सी बड़ी वाली वैल्यू को छोटी वाली वैल्यू से डिवाइड करेंगे। एंड व्हाट इज द टर्मिनेटिंग कंडीशन, ये आपकी टर्मिनेटिंग कंडीशन है, या तो 0 मिल जाए या फिर 1 मिल जाए। अगर 0 नहीं मिलेगा, बिकॉज डिवीजन में 0 मिलने का मतलब ही नहीं है, तो टर्मिनेटिंग कंडीशन आपकी होती है 1 मिलना। ठीक है, जब तक 1 नहीं मिलता यू हैव टू कीप ऑन डिवाइडिंग। अब 0 का मिल सकता तो हमें 0 पॉइंट समथिंग में हमारा रिजल्ट आने, पॉइंट में आने लगे, तो वहीं पे वी हैव टू स्टॉप। पॉइंट तो हमें लेंगे नहीं, तो पॉइंट के केस में हम एक फुल वैल्यू लेंगे। ठीक है, एक मिनट, ठीक है, सिंपल है, इजी।
अब ये मक्स का क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है सो दैट आप लोग को मक्स का, इन केस यू नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, तो कंसेप्ट समझ में आ जाए। मक्स मैंने बहुत बार करा रखा है एंड बहुत बार मैंने डिस्कस किया मक्स, बट स्टिल आई हैव टेकन दिस, जिससे कि अगर इन केस somebody is not able to understand the concept of mux, वो समझ पाए। ये आपके इनपुट्स हैं x और y बार, और ये आपकी z, ये क्या है, सेलेक्ट लाइन, ठीक है। तो इसको समझना ऐसे, सेलेक्ट लाइंस आपके इनपुट से कनेक्ट होती है और हर इनपुट को एक वेरिएबल से हम डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या है, जो जीरो इनपुट है उसको हमने किस स्विच से या किस वेरिएबल से कनेक्ट किया है, x से। और सेलेक्ट लाइन जब जीरो हुई, मतलब जीरो मतलब z कॉम्प्लीमेंट, तो किससे कनेक्टेड है, वो है कनेक्टेड x के साथ। प्लस जब सेलेक्ट लाइन 1 है, मतलब क्या है, z, तो वो किससे कनेक्टेड है, वो कनेक्टेड है y कॉम्प्लीमेंट के साथ। सो दिस इज द बेसिक वर्किंग ऑफ मल्टीप्लेक्सर। क्या मल्टीप्लेक्सर की वर्किंग हुई, एवरी इनपुट इज कनेक्टेड टू अ पर्टिकुलर वेरिएबल, ठीक है। मतलब अब देखो 2 क्रॉस 1 मक्स है आपका, तो मतलब 2 इनपुट्स हुए 0 एंड 1, ठीक है। 2 इनपुट हो गए 0 एंड 1। ये जो इनपुट लाइंस हैं बेसिकली दीज आर योर सेलेक्ट लाइंस। ये जो इनपुट वैल्यूज है ना 0 और 1, ये सेलेक्ट लाइन की वैल्यूज हैं, दैट इज वेरिएबल z ओवर हियर। और जो इनपुट है उन्हें हमने कनेक्ट कर रखा है विद 2 अदर वेरिएबल्स x एंड y बार। x and y bar are not themselves the input values, they are connected to inputs and input is basically the select lines। तो यहाँ पे अगर आप देखो 0 है, मतलब ये हो गया z कॉम्प्लीमेंट और ये है आपका z। तो अगर हम इसकी बात करें f1 लिख देते हैं इसे, मक्स 1 का वैल्यू f1। तो व्हाट इज f1, f1 will be x z कॉम्प्लीमेंट प्लस y कॉम्प्लीमेंट z, ठीक है। ये आपका अब y जो है वो मक्स 2 से कनेक्टेड है, तो ये आपका हो गया y कॉम्प्लीमेंट और ये आपका हो गया y, ठीक है। सो व्हाट इज वैल्यू ऑफ f नाउ, f इज x z कॉम्प्लीमेंट प्लस y बार z मल्टीप्लाई बाय y बार, क्योंकि ये 0 से कनेक्टेड है, प्लस एक्स वाई, ठीक है। अब इसको ओपन कर दो, सिंपल सम। सो एक्स वाई बार जेड प्लस वाई बार जेड प्लस एक्स वाई, ठीक है। अब अगर आप देखो ये 2 टर्म्स देखो, इफ यू सी दीज 2 टर्म्स, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, कुछ कॉमन ले सकते हैं, एक्स कॉमन ले सकते हैं, राइट। फिलहाल के लिए हम वी कैन टेक x कॉमन फ्रॉम दीज 2 टर्म्स। तो x हमने कॉमन ले लिया, x, सो वी गेट व्हाट, y कॉम्प्लीमेंट z प्लस y। ये वाली टर्म हमने एज इट इज छोड़ दी। आई होप यू ऑल मस्ट हैव स्टडीड एब्जॉर्प्शन लॉ। क्या होता है एब्जॉर्प्शन लॉ, a प्लस a कॉम्प्लीमेंट b, अगर ऐसा है तो द रिजल्ट विल बी a प्लस b। मतलब दिस नेगेटिव a विल बी एब्जॉर्ब बाय दिस पॉजिटिव 1। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या है, y प्लस y बार z, सो दिस विल बी x y प्लस z प्लस y बार z, मतलब x y प्लस, उसको लिख लो x y प्लस x z प्लस y बार z, एक्स वाई, ठीक है। एक्स जेड, ये हो गया एक्स वाई, ओके। इसमें कुछ प्रॉब्लम गड़बड़ हो रही है, अच्छा जेड बार है ये भी, सॉरी, एक्स बार वाई बार जेड बार, ये जेड बार है, ये जेड बार है क्या, सॉरी। एक्स वाई एक्स जेड बार प्लस वाई बार जेड, दैट इज ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक वर्किंग ऑफ मक्स। मक्स की ऑलरेडी पुरानी वीडियोस पड़ी हुई हैं यूट्यूब पे ही, सो आई सजेस्ट इफ एनीबॉडी इज फेसिंग एनी प्रॉब्लम इन मल्टीप्लेक्सर, प्लीज वॉच दोज वीडियोस, इट विल हेल्प यू। ओके, दिस इज द गुड क्वेश्चन। इसमें क्या बोल रहे हैं, वी कंसीडर द एडिशन ऑफ टूज कॉम्प्लीमेंट नंबर्स, मतलब हमारे पास 2 नंबर्स हैं जिनका हमने 2's कॉम्प्लीमेंट लिया है, दैट इज bn1 bn2 अप टू b0, ये 2 नंबर है हमारे पास, ठीक है, b और a के टर्म्स में।
A binary adder for adding unsigned binary number is used to add the two numbers. The sum is noted by C and the carry out by C out. Which one of the following options correctly identify the overflow condition? सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि overflow condition होती क्या है और कब exist करती है. ठीक है, तो यहां देखो थ्योरी है ये. n bit 2's complement representation for signed integer can be represented numbers from -2 to the power n minus 1 to 2 to the power n minus 1 minus 1. ये आपको याद रखना है. ठीक है, अगर हम signed integer ले रहे हैं, in that case if we have to represent 2's complement for n bit, तो उसकी क्या रेंज है? -2 to the power n minus 1 to 2 to the power n minus 1 माइनस 1. ठीक है, 4 बिट अगर है हमारे पास, n की वैल्यू 4 है तो रेंज क्या हो गई? -8 टू -7. और n की वैल्यू 5 है तो रेंज हो गई -16 टू 15. ओवरफ्लो अकर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन व्हेन 2 n बिट 2's कॉम्प्लीमेंट नंबर्स आर एडेड. मतलब हम दो 2's कॉम्प्लीमेंट नंबर को ऐड कर रहे हैं और जो रिजल्ट है वो बहुत बड़ा है, मतलब n बिट में नहीं स्टोर हो सकता. ये आपकी इंपॉर्टेंट कंडीशन है. ओवरफ्लो की क्या कंडीशन है? इफ वी आर एडिंग टू नेगेटिव नंबर्स, मतलब अगर मैं -6 और -7 को ऐड करूं और आंसर आए कोई पॉजिटिव नंबर. ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड. अब ये सिर्फ बाइनरी में ही पॉसिबल है बिकॉज -6 -7 विल गिव यू -13, तो माइनस का माइनस में आएगा. लेकिन जब हम बाइनरी में करते हैं तो इन सम केसेस वी डू गेट नेगेटिव नंबर्स डू गिव पॉजिटिव रिजल्ट. सो देन वी हैव ओवरफ्लो. अगर वी आर एडिंग टू नेगेटिव नंबर्स एंड वी आर गेटिंग अ पॉजिटिव रिजल्ट, इट इज ओवरफ्लो. या फिर वी आर एडिंग टू पॉजिटिव नंबर्स एंड द रिजल्ट इज नेगेटिव, देन वी गेट अ ओवरफ्लो. तो ये हमारी ओवरफ्लो की कंडीशन हो गई. ठीक है, अब आपका क्वेश्चन क्या है? बेसिकली क्वेश्चन में दे आर सेइंग, दे आर क्लियरली राइटिंग कि वी हैव टू नंबर्स an-1, an-2 up to a0 and we have bn-1, bn-2 up to b0. When we are adding these two numbers, we are getting cn-1, cn-2 up to c0. करेक्ट, यही कह रहे हैं वो. ठीक है, अभी अभी वी हैव जस्ट रेड द ओवरफ्लो कंडीशन कि अगर दो नेगेटिव नंबर्स को हम ऐड करें और रिजल्ट आए पॉजिटिव, या दो पॉजिटिव नंबर्स को ऐड करें और रिजल्ट आए नेगेटिव, तो अब हमें क्या फोकस करना है? वी हैव टू फोकस ओनली ऑन द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट. यहीं से हमें ओवरफ्लो पता लग जाएगा. We have to just focus on the most significant bit. कैसे? क्या है हमारे most significant bit? an-1 and bn-1. ये हमारी दो इनपुट्स हो गए. करेक्ट, ये इनपुट्स हैं. और cn-1 हमारा आउटपुट हो गया. ठीक है, तो दो केसेस हो रहे हैं 0 0 0 1 1 0 1 1. ठीक है, बेसिकली ये हमारा आउटपुट वाला केस नहीं होगा. cn-1 हमारा आउटपुट नहीं है. cn-1 हमारा एक वेरिएबल है जिसके में चेक करना है कि क्या वेरिएबल आ रहा है ना. तो 0 0 0 नहीं, वही सही करेक्ट था. और cn-1 तो हमारा आउटपुट हो गया ना फिलहाल के लिए. करेक्ट करेक्ट, सॉरी. सो वी हैव केसेस 0 0, वी हैव केसेस 0 1, वी हैव केसेस 1 0 एंड वी हैव केसेस 1 1. ठीक है, ओवरफ्लो कब हो रहा है? व्हेन टू नेगेटिव नंबर्स आर गिविंग अ पॉजिटिव वैल्यू. ठीक है, या व्हेन टू पॉजिटिव नंबर्स आर गिविंग अ नेगेटिव वैल्यू. यही तो ओवरफ्लो का केस है. कंडीशन यही है ना ओवरफ्लो की. टू नेगेटिव नंबर्स जब हम ऐड कर रहे हैं तो एक पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है. ठीक है, तो ये हमारा कंडीशन हो गया फॉर ओवरफ्लो, ये वाला कंडीशन.
ठीक है, ये और ये. सो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? हाउ कैन आई राइट दीज टू नंबर्स? आई कैन राइट दिस वन एज an-1 complement bn-1 complement cn-1 plus an-1 into bn-1 into cn-1 complement. मतलब आपका ये वाला ऑप्शन नंबर बी, an-1 bn-1 cn-1 complement. देखो यही है, ये आपका हो रहा है 110 प्लस 001. मतलब when two numbers are positive, negative and giving a positive result, or when two numbers are positive and giving a negative result. In that case, we can identify the overflow condition. ये आपकी ओवरफ्लो की कंडीशंस हैं, तो ये इसीलिए आपको ये कंडीशंस आपको ध्यान रखनी दोनों, कि ओवरफ्लो कब अकर होता है. When, अगर हम दो नेगेटिव नंबर को ऐड करके पॉजिटिव रिजल्ट दे रहे हैं तो ओवरफ्लो है, और दो पॉजिटिव नंबर को ऐड करके नेगेटिव रिजल्ट आ रहा है तो ओवरफ्लो है. ठीक है, ये ओवरफ्लो कंसेप्ट मुझे थोड़ा इंपॉर्टेंट है बिकॉज दे कैन आस्क यू फ्रॉम एग्जाम इन एग्जाम. तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला कंसेप्ट आपको थोड़ा, आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है. ओके, सो that's all for this session. कल, that is tomorrow, we will be discussing the sequential circuit questions. ठीक है, so please watch the video, and if you like the video, please like it and share. You can share with your friends as well, and you can subscribe your channel for the ongoing videos जो हम अब तैयारी स्टार्ट करने वाले, जो हमने स्टार्ट कर दी है बेसिकली अपने अपकमिंग एग्जाम. थैंक यू एवरीवन.